Welcome back. So last class we started with the OOPS concepts. Last to last class we started with the lastly encapsulation, and then yesterday's class. So let's recap what we have seen. So ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने स्टार्ट किया था, वहां पर हमने बेसिक्स ऑफ क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैट वी अंडरस्टूड. एंड व्हाई डू वी नीड दिस कॉन्सेप्ट्स? वी नीड दिस कॉन्सेप्ट्स टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज इन द प्रोग्राम. तो ये कुछ उस कॉन्सेप्ट है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, काम भी करने के लिए आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है. सो दीज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर. So encapsulation, inheritance, polymorphism and abstraction, all of these concepts are something talking about the object. तो पहला concept है encapsulation. So what it talks about? Objects data security. तो यहाँ पर अगर आप encapsulation concept implement करते हो, use करते हो, तो what is going to happen? You are going to secure your objects data. So Pushkar, can you tell us how do we secure objects data, or how do we implement encapsulation? So we provide public methods such as getters and setters. Why do we provide public getters and setters? So अगर आपका डेटा प्राइवेट है तो आप उसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? सो व्हाट वी डू, वी मेक द डेटा मेंबर्स प्राइवेट सो दैट दे कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली. अब डायरेक्ट एक्सेस क्यों बंद करना है? क्योंकि हमें कोई वैलिडेशन चाहिए कि व्हाट वैल्यू has to be set, certain criteria, so that you can condition criteria you can put inside a method. So for that purpose we make that as private और उसको public getter setter through provide करते हैं. Then I also talked about what is an immutable class. Akshay, yes. So immutable class means ऐसा क्लास जिसका अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते. तो हमें फॉलो अप क्वेश्चन देखना है बाद में, हाउ डू वी क्रिएट एन इम्यूटेबल क्लास. So that we will clear once we have oops understanding. Then what is singleton class? Ayan. Pushkar. So for a given class, only one object can be created. How do we create a singleton class, Akshay? How do we implement or how do we design a singleton class? Okay, Ayan. So if I make the constructor private, so what will happen? If I make the constructor private of a class, so what is going to happen? You cannot. तो आप क्लास के बाहर उस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते, राइट? मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. सो दैट इज वन वे वी ब्लॉक. दूसरा है कि आपको ऑब्जेक्ट ही चाहिए, बट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास वो क्या क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर तो आप कॉल नहीं कर सकते, प्राइवेट है. सो वी क्रिएट वन object inside the class, we make it as static, and we provide one method which will return that same instance every time. Perfect. Then what is inheritance concept talks about? Reusability or code reusability or avoiding code duplication. So can anyone just tell me, maybe Akshay, how do we avoid code duplication using inheritance? Correct. तो यूजुअली इनहेरिटेंस में होता क्या है कि व्हाट हैपेंस, लेट्स से आई वांट टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में मुझे क्लास की जरूरत पड़ती है. सो आई विल क्रिएट क्लास, आई विल गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, राइट, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस. देन व्हाट हैपेंस, समटाइम बहुत सारे ऐसी क्लासेस होगी जहां पर कोड बार बार सेम जैसे होगा, सेम काइंड ऑफ वेरिएबल, सेम काइंड ऑफ मेथड्स. अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो आपको सेम लॉजिक अलग अलग टाइप के क्लास में लिखना पड़ेगा.
So to avoid that, what we do, we use the concept of inheritance. So when I use inheritance, I don't need to write the code again and again in multiple classes. So how can I reuse the code? What keywords we need to use, Pushkar? Extends and implements. Okay. So inheritance is the process of inheriting or reusing the code from one class to another class or one object to another object. How do we implement inheritance? By using extends and implements keywords. Okay. So how many classes one class can extend, Akshay? Only one. Okay. And how many interfaces we can implement? One to many. So one class can implement any number of interfaces. So one interface can extend only one interface or many? Many interfaces. Right. Okay. So what type of relationship inheritance represents? Is a type of relationship. And how do we read that? Child is a type of parent. Okay. And what about composition? Has a type of. कौन सा favor करना चाहिए? Has a type. We should be favoring composition. Why we should favor composition over inheritance? लूजली कपल्ड एप्लीकेशन मतलब लो डिपेंडेंसी वाला एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो हमें कंपोजिशन यूज करना चाहिए ओके देन what different types of inheritance are there, Pushkar? Single level single level inheritance, multi level, multiple inheritance, cyclic, hierarchical, and hybrid. Okay. So what is single level? One class can extend only one another class. So is it supported in Java? Okay. What is multi-level? And that class extend another class. So there is a grandchild, parent, and grandparent like that. So that can be anything. Okay. What is multiple inheritance, Ayan? So one class is trying to reuse code from more than one classes. So is it possible in Java, Pushkar? Ayan, is it possible in Java? How it is possible? So it is not possible through classes, but it is possible through interfaces. So why it is possible through interfaces and why it is not possible through classes, Akshay? So whenever one class tries to use code from more than one classes, so obviously he is going to get the code from two classes. So whenever we create object of a such class, we will get confused which member to access for that child class, either from parent one, parent two. तो ये confusion हटाने के लिए multiple inheritance is not supported through classes, but it is supported through interfaces. Why it is supported through interfaces? Because interface के अंदर आपके पास instance members नहीं होते, so there is no confusion, right? What about hierarchical inheritance? So one class is being reused across multiple classes. Is it supported in Java? Yes. What about cyclic? So class is trying to reuse code from itself. Is it possible? No. You will get compile time. What about hybrid? Akshay? Hybrid. Combination of multiple inheritance and any other type. Perfect. Now, in every constructor, or before that, what is constructor chaining? Another class. Same class.
कंस्ट्रक्टर को कहां से कॉल कर सकते हैं आप? ऑब्जेक्ट के थ्रू। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं हम कंस्ट्रक्टर से? एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। आप कंस्ट्रक्टर किसका कॉल कर सकते हो? ऑफ द सेम क्लास। एक कंस्ट्रक्टर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना, सीसी, फ्रॉम वन कंस्ट्रक्टर अनदर कंस्ट्रक्टर। So we call one constructor from another constructor. So that can be of same class or that can be of super class. Maximum how many constructors we can call, Pushkar, from one constructor? Multiple. Only one constructor. How do you call super class constructor? By using super. And how do you call same class constructor? Using this. So maximum we can call only one constructor, and that line has to be the first line. That line has to be the first line. In every constructor, there is second line invisible. There is, if there is no constructor by default, it will be a super class constructor. And after that, there is second line of call. What is that? Barabar, instance block of the same class. Then we talked about inheritance, we talked about polymorphism. We'll come to the again inheritance part. Polymorphism means multiple behaviors. It is an ability of an object to have multiple behaviors and take on multiple behaviors based on the situation. Now, abstraction, what we do? We hide the implementation details, how part. We hide the implementation part. So inheritance, let's quickly do that. We have already seen this. How do we reuse single level, multi-level, multiple? Why it is supported through interfaces, why it is not supported through classes, hierarchical, hybrid, cyclic. And finally, I talked about collection framework hierarchy. कितने लोगों ने घर जाके इसको ट्राई किया? Everyone? Perfect. So do this for next 5-10 days. So you'll be like ready for the collection framework. Every day try to just write it down by own. मतलब लिखने का खुद से ट्राई करो. So you will understand कि कौन सा इंटरफेस है, कौन सा क्लास है, and what is the hierarchy. That should be like printed on your brain. पूरा आपको दिमाग में छपना चाहिए पूरा ये. Constructor chaining, that also we talked about. Order of execution. आपको पता है कि before you create an object of any class, that class has to be loaded in the memory. That class has to be loaded in the memory. Right? Then only we can do this. So सबसे पहले अगर आपका पेरेंट चाइल्ड इनहेरिटेंस ये वाला है सिचुएशन, देन सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक ऑफ पेरेंट क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड. व्हाई? क्योंकि सबसे पहले वही मेमोरी में लोड होगा. वंस द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद फॉलोड बाय चाइल्ड क्लास मेमोरी में लोड होगा. देन इट्स स्टैटिक ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. तो ये फर्स्ट. तो उसके बाद फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करो. जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, देन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पहली लाइन सुपर, तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पे कॉल वहां पर जाएगा कंट्रोल. उसके दो लाइन है फिर भी सुपर क्लास, उसका कोई सुपर है नहीं अभी एग्जीक्यूशन के लिए, तो फिर इंस्टेंस ब्लॉक. तो इंस्टेंस ब्लॉक फिर एग्जीक्यूट होगा पेरेंट क्लास का, फिर कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास, देन कंट्रोल विल कम बैक टू द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर. तो फिर वहां पर दूसरी लाइन आएगी इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ द चाइल्ड क्लास एंड देन कंस्ट्रक्टर ऑफ द चाइल्ड क्लास. और लास्टली ये मैंने आपको 4 सिनेरियोस बताए थे. फर्स्ट में तो कोई है नहीं. मुझे बताओ कौन किसका कोड रीयूज कर रहा है? चाइल्ड इज यूजिंग द कोड फ्रॉम पेरेंट क्लास. तो पेरेंट को एक्सेस होगा क्या चाइल्ड का? नो. सो पेरेंट इक्वल टू न्यू पेरेंट. इस केस में हम बस पेरेंट का ही एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज जस्ट लाइक नॉर्मल क्लास, उसी का मेंबर एक्सेस कर पाओगे. तो पेरेंट डज नॉट हैव एक्सेस टू चाइल्ड, ये ध्यान रखना. हु इज यूजिंग द कोड फ्रॉम होम? चाइल्ड इज ट्राइंग टू यूज कोड फ्रॉम पेरेंट, नॉट द अदरवाइज. ठीक है. देन चाइल्ड इक्वल टू न्यू चाइल्ड. अब इस केस में हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं.
अभी आपको ऑलरेडी पता है कि चाइल्ड क्लास है, सो उसका उसके पास भी कोड होगा, चाइल्ड क्लास का कुछ लॉजिक होगा, प्लस देयर माइट बी समथिंग फ्रॉम पेरेंट क्लास एज वेल। तो उसके पास दो चॉइसेस है, एक तो खुद का भी कोड है और पेरेंट का भी है। अब यहाँ पर तीन चॉइसेस है। अब कोई मेथड, लेट्स थिंक ऑफ अ मेथड विच इज नॉट देयर इन द चाइल्ड क्लास बट दैट इज इन द पेरेंट क्लास, एक्सेस कर सकता है क्या? वो कर सकता है। मेथड पेरेंट के पास नहीं लेकिन खुद के पास है, एक्सेस कर सकता है क्या? कर सकता है। मेथड दोनों के पास है, पेरेंट के पास भी है और इसके पास भी है, उस केस में चाइल्ड क्लास एक्सेस करेगा। तो ये आपका सेकंड केस। फोर्थ वाला तो पॉसिबल नहीं है, चाइल्ड सीपी इक्वल टू न्यू पेरेंट, क्योंकि आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास रेफरेंस से होल्ड नहीं कर सकते, राइट? सो आपको इज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप याद रखना है। क्या? इज ए टाइप का। So can you tell me how do we read this? 20 is a type of integer. 20 is a type of. Similarly, this object is of type parent. So this is of type this one. तो ये हम रीड करते is a type of, child is a type of parent, child is a type of parent. तो ये केस पॉसिबल है। अब इसमें भी हम यही केस देखने वाले आज, वी आर गोइंग टू लर्न ऑल ऑफ दिस। पहला केस क्या है? बस पेरेंट के पास होगा मेंबर्स, चाइल्ड के पास होगा या दोनों में भी होगा। अगर पेरेंट के पास है, ओनली प्रेजेंट के पास, तो पेरेंट का एक्सेस होगा। चाइल्ड के पास होगा तो नहीं एक्सेस कर सकता। यहां पर दोनों में भी वेरिएबल और मेथड, we'll talk about this variable and method. So variables will be from parent class and methods will be from child class. We'll discuss this again today, but ये कुछ मैंने आपको देखने को बोला था। Any question so far? Perfect. So let's try to go through the examples of inheritance, then we'll come back to this. So I'm going to create the classes inside the method itself for simplicity, because multiple parent child होने वाले मेरे पास. So that's the reason. So I have class parent. Check. Now I'm creating certain variables. Okay. So this is my parent class. I'm going to create a child class. Right. Now child class does not have anything, but he is trying to extend parent class. तो अभी parent class का जो भी members है वो किसके पास आएगा? Child class. So if I create object of, so even though if you look at this, M1 method is not there in the child class, but that is from the parent class. Same is the case with the variable also. So if I do this, so I'm able to call M1 method as well as access that. So are we able to reuse the code or not? Now there is one method I'm writing inside the child class. So M2 method is only present inside the child class. That is not present in the parent class. This is your single level inheritance, you can simply say. अगर मैं तीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं अभी,
So what do you think? Can I access M2 method? M1 I can do that, but I cannot do M2 method. Why? Parent is not using the code. Who is child? तो पेरेंट को एक्सेस नहीं होगा. You will get compile time error. Makes sense? Who is using the code? Child, not the parent. This case में you have to remember that parent first case हमारी क्या याद रखना है आपको? This is what you have to remember. That's it. So इस केस में मैंने parent parent equal new parent क्या किया? So what will happen? क्या कर सकते हो आप? Using this reference, we can access only from parent class and not from the child. So ध्यान रखना ये. This is very simple. ठीक. Now second case यहाँ पर what do you think? Yeah, the first thing very clear. I think you are clear with the first case. Easy with this first case. इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? फर्स्ट पेरेंट का एक्सेस कर पाएंगे. नाउ सेकेंड केस. अब आपके पास बहुत सारी सिंपल चीजें हैं. अब देखो यहाँ पर कैन यू ऑब्जर्व दिस क्लासेस? पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास. सो पेरेंट क्लास कंटेन्स one variable, one method. Child class contains only one method. अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर रेफरेंस का यूज करके आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर आपके पास कितने कॉम्बिनेशन हैं? 3. एक तो मेंबर कहां पर हो सकता है? पेरेंट क्लास में या चाइल्ड में या दोनों में भी हो सकता है. लेट मी राइट वन मेथड. लेट्स से void m3. ठीक है, ये पेरेंट की m3 है और मैं चाइल्ड क्लास में भी m3 मेथड लिख रहा हूं. Now look at this. There are 3 situations. If member, any component, if component is only present in parent class, if component is only present in child class, if component is present in both parent class and child class, तो मुझे बताओ using this reference so what we can do? If component is only present in parent class, कौन यूज कर रहा है यहाँ पर? चाइल्ड. किसका यूज कर रहा है? पेरेंट का. तो एक्सेस कर सकते हैं क्या? If component is only present in parent class, we can access it from parent class. Right. Now think of in this case. अब parent में क्या है? M1 method is only present in parent class. M1 method is present in only parent class. तो एक्सेस कर सकते हो क्या आप?
सो चाइल्ड डॉट m1, तो ये कहां से मेथड है? प्रेजेंट इन ओनली पेरेंट क्लास। परफेक्ट। दूसरा है m2 मेथड, प्रेजेंट इन ओनली चाइल्ड क्लास। m3 मेथड, प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। अब मुझे बताइए, बस प्रेजेंट है, इफ कंपोनेंट ओनली प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास वी कैन एक्सेस फ्रॉम पेरेंट क्लास। इफ कंपोनेंट इज ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास देन access it from child class. If component is present in both parent class and child class, we can access from simple. एक फिर से, तो चाइल्ड क्लास की बात कर रहे हैं हम, ये रेफरेंस की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट किसका बना है? चाइल्ड क्लास का। तो ये रेफरेंस के यूज करके हम बात कर रहे हैं। यूजिंग दिस रेफरेंस हम कौन सी चीजें एक्सेस कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, पेरेंट के पास होगा लेकिन तुम्हारे पास नहीं, तुम एक्सेस कर सकते हो। पेरेंट के पास नहीं है लेकिन बस तुम्हारे पास है, फिर भी एक्सेस कर सकते हो। तुम्हारा बोथ प्रेजेंट है, पेरेंट में भी और चाइल्ड में, तो तुम ऑब्वियसली तुम्हारा एक्सेस करोगे, राइट? सिंपल। So M1 is only present in parent, M2 is present in child, and what about M3? Both. तो कहां से एक्सेस हो रही है? चाइल्ड क्लास। बहुत सिंपल है, मेक सेंस? लुक एट दिस, कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है। क्लियर? Perfect. Now look at this case. Third case. How do we read that? If component is only present in parent class, we can access from parent class. If component is only present in child class, we cannot access it. Otherwise, compile time error. If component is only present in child class, we cannot access it. Otherwise, compile time error. Reference किसका है? पेरेंट का। अगर पेरेंट में है बस तो पेरेंट का एक्सेस कर सकते हैं। मेक सेंस? अगर बस चाइल्ड में है कंपोनेंट तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तीसरा है, इफ कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, वी कैन एक्सेस वेरिएबल्स फ्रॉम parent class and methods from child class. If you understand this, ये दोनों केस, you are good to go. बहुत सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। Okay, let's see this once. So we are trying to understand case number 3. What is that? Parent equal to new child. So how do we read this? Child is a type of parent.
इज ए टाइप ऑफ ये रिप्रेजेंट. मेक सेंस. अब देखो यहां पर, तो इस केस में क्या है, आपके पास तीन केस है. ओनली प्रेजेंट इन पेरेंट, ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड, प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास. तो आपको पता है पेरेंट से होगा तो पेरेंट से, कंपाइल टाइम एरर, एंड वेरिएबल्स फ्रॉम पेरेंट एंड मेथड्स फ्रॉम चाइल्ड. तो याद रखना ये. लेट्स डू दैट. आई एम क्रिएटिंग अ क्लास parent extends. I'm going to create parent equal to new child. So question is, can we hold child class object using parent class reference? Alright. Can you hold child class object using parent class reference? Yes. So we can hold child class object using ठीक. Okay. Now first thing, memory is present in only parent class. ठीक. Now using this reference, parent out m1. A. So we are able to access this also. Only present in parent class. तो parent का access कर पा रहे हम. Look at this. Now in child class, can I access this? नहीं कर सकते आप. Make sense? क्योंकि रेफरेंस किसका है, पेरेंट का, तो you cannot access this. Now if a memory is present in both parent and child, variable b is there, variable is also there, and I'm writing a method up to this. Now variable b is there in the parent class as well and child class as well. Method m3 is present in both parent as well as child. So can you tell me? So parent dot, let's say b and m3. So m3 from child and b from, so b का value around 20. Sorry, 2. 2 is from parent class. Perfect. समझे? क्या क्या? तो पेरेंट की एक्सेस होगी, पेरेंट में होगी तो
बहुत सिंपल है, देखो तीन ही ऑप्शन आपके पास, एक तो पेरेंट में प्रेजेंट होगा, या चाइल्ड में होगा, या दोनों में भी होगा। अब बस पेरेंट में है तो पेरेंट एक्सेस कर सकते हो, पेरेंट का रेफरेंस है। बस चाइल्ड में है तो कंपाइल टाइम एरर। दोनों प्रेजेंट है, वेरिएबल और मेथड। तो वेरिएबल इज प्रेजेंट इन पेरेंट एज वेल एज चाइल्ड, तो वेरिएबल किसका एक्सेस होगा? पेरेंट का, मेथड चाइल्ड। सिंपल। और दूसरी, पहला और लास्ट केस वेरी क्लियर, पेरेंट पेरेंट इक्वल टू न्यू पेरेंट, इसमें क्या है? बस पेरेंट का एक्सेस कर सकते हो। लास्ट वाला केस तो इनवैलिड है, कंपाइल टाइम एरर आएगा। सेकेंड केस बहुत ही सिंपल है, चाइल्ड चाइल्ड इक्वल टू न्यू चाइल्ड। बस पेरेंट में होगा, बस चाइल्ड में होगा, दोनों में भी होगा। तो बस पेरेंट में होगा तो एक्सेस इट, बस चाइल्ड में होगा एक्सेस फ्रॉम चाइल्ड क्लास। दोनों प्रेजेंट है, पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी, तो चाइल्ड का एक्सेस करो, वेरी सिंपल। तीसरा केस में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ट्विक है, पेरेंट पेरेंट इक्वल न्यू चाइल्ड, इसमें ऑब्जेक्ट है चाइल्ड का बट रेफरेंस है पेरेंट का, तो इसलिए पेरेंट पे बस प्रेजेंट होगा तो पेरेंट का एक्सेस होगा। बस चाइल्ड में होगा तो एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि रेफरेंस पेरेंट का है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है। चाइल्ड इज ए टाइप ऑफ पेरेंट। समझे तीनों केस? क्लियर ये वाला केस? ओके। पेरेंट है स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नाउ व्हाट आर द थिंग्स आर देयर, जस्ट पे अटेंशन। तो पेरेंट क्लास में तीन चीजें हैं, स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर। सेम चीज कहां पर है? चाइल्ड क्लास में भी। इफ आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास, व्हाट इज आउटपुट? किसका? ओके, व्हाट इज स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक, देन कंस्ट्रक्टर किसका? ओनली पेरेंट क्लास का। इज देयर एनीथिंग दैट विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर चाइल्ड क्लास? नो, सब कुछ पेरेंट क्लास का ही हो रहा है। सो पेरेंट क्लास का स्टैटिक ब्लॉक, पेरेंट क्लास का इंस्टेंस ब्लॉक, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। नाउ if I do this, sorry, child, new child, what do you think? Static block इसका parent का, static block of child, then parent class, then constructor of parent class, then instance block of child class and constructor of child class.
Is it make sense this? Order of execution. Okay, let's try to understand this constructor chaining as well. So let's say I have this class parent. There I have this parent class constructor. Child class constructor, right? Now, even though you do not write anything here, now let me write some other constructor, child int a. ठीक. Now carefully see this. Child class में दो constructor है, parent class में एक constructor है. Now if I create object of child, so what do you think? Which constructor you are calling? ये वाला constructor. और यहां से मैंने अगर कॉल किया this, so कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है यहां से? सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर. और यहां से आप नहीं लिख रहे हो लेकिन फिर भी सुपर कॉल हो रहा है यहां से. तो सबसे पहले यहां से आप गए चाइल्ड क्लास, जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, वहां से आपने कॉल किया दिस, यानी सेम क्लास का पैरामीटर कंस्ट्रक्टर. देन यू कम टू दिस पैरामीटर्स, और यहाँ पर इवन दो इफ यू डू नॉट राइट, ये लाइन तो अपने आप ऐड हो गए. तो यहां से हम जा रहे हैं पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. दैट इज डन. फिर यहां से कंट्रोल आएगा ये वाला कंस्ट्रक्टर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर. ये खत्म हो गया. उसके बाद वापस जाएगा जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर. दैट्स इट. मेक सेंस? क्लियर? चलो. Now you are good with the constructor chaining as well, right? How do you call same class constructor? How do you call super class constructor? Next, on the similar line, a parent class has x, y, z. ठीक. Now it also has 10, 20, 30.
ये सुपर क्लास के वेरिएबल्स, ये child class, same set of variables again here. And I have this method, let's say void show. ठीक. Now there also I have 100, 200 and 300. So can you just briefly look into this? How many total? We have 9 variables. So what is the type of these variables which are inside the show method? Local. What about this? What about this instance? Perfect. Now what I want you to print all these 9 variables. So local variables, which are the local variables? Local variables we have. कौन से local variables हैं? Simple. ये हो गए आपके लोकल वेरिएबल, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो आप. यू कैन डायरेक्टली एक्सेस. व्हाई? बिकॉज दे आर लोकल. नाउ आई वांट यू टू एक्सेस instance variables from child. Instance variables from parent. How do you access? ये सारा अभी तो लोकली एक्सेस कर रहे हो आप इस तरीके से तो. राइट. सो हाउ डू यू डू दिस? तो यहां पर मुझे यूज करना पड़ेगा दिस. दिस मीन्स दिस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल. दिस डॉट वाई, दिस डॉट जेड. और यहां पर सुपर डॉट एक्स, सुपर डॉट वाई एंड सुपर डॉट जेड. एक्स वाई जेड. ओके. Okay. Now there is little change
So what is happening? We are not able to access super. Why? Anyone? सर बोलो. पॅरेंट क्लास एक्सटेंड केला नाही काही. Oh, very good. So ये super कब मिलेगा access? Perfect. Good catch. Makes sense. So why we are not able to access that? अभी कोई रिलेशनशिप है नहीं उन दोनों में. आई थॉट मुझे जावा कुछ चेंज में डायरेक्टली वर्जन पे चला गया instead of checking this basic stuff. So I thought is there any some new change in the latest version of Java? So I directly jumped there. That's fine. So if you look at this, local variable you directly access, instance variable you access using this keyword, and you access super class members using super keyword. Make sense? Easy? Clear? All the cases? I think we are good for the interview questions. We can directly jump. Okay. So before that, let's try to understand one more thing. यहाँ से आपको थोड़ा सा बेसिक आ जाएगा. So final keyword. This is little bit idea I'm giving you. इसको हम और भी पढ़ने वाले. Now, if I make a class final, we cannot extend it. If you make a class as final, then it cannot be extended. Right? Example. So what has happened? If I make the class as final, so you'll get compile time error. As final classes cannot be extended. So you'll get compile time error here. Understand this. अगर हम क्लास को फाइनल बनाते व्हाट हैपेंस, उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते. अभी के लिए मैं लिख लेता हूं. इफ वेरिएबल्स आर फाइनल
then it cannot be reassigned the value. इसको हम बाद में भी देखने वाले हैं, डोंट वरी, बट अभी के लिए इतना समझो. इफ अ वेरिएबल इज देयर, लेट्स से int a इक्वल टू 100, ठीक. अब मैं a इक्वल टू 200 कर सकता हूं, बट द मोमेंट आई मार्क दिस एज फाइनल, इसका वैल्यू आप री इनिशियलाइज नहीं कर सकते. इफ अ वेरिएबल इज फाइनल, उसको आप दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते. यू गेट कंपाइल टाइम एरर. समझे? फाइनल मतलब दैट वैल्यू इज नाउ फाइनल. दैट वैल्यू इज नाउ फाइनल. इफ वेरिएबल्स आर फाइनल देन इट कैनॉट बी रीअसाइन द वैल्यू. अब आपके पास तीन टाइप के वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल. तीनों को भी फाइनल कर सकते हो. इफ वेरिएबल्स आर फाइनल देन इट कैनॉट बी रीअसाइन द वैल्यू. सो फाइनल वेरिएबल्स must be given value before they are used. Example, अब ये लोकल वेरिएबल को तो आपने डायरेक्टली वैल्यू दे दिया. नाउ इफ आई मार्क दिस एज लेट int x इक्वल टू दिस वन एंड आई मार्क दिस एज फाइनल, इंस्टेंस वेरिएबल है, एंड आई एम मार्किंग दिस एज स्टैटिक. अब ये कैसा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल. ये कैसा है? स्टैटिक. ये तो लोकल है, इसको तो वैल्यू देना ही पड़ेगा. अब इसको ये कंपाइल टाइम एरर आ रहा है. क्यों? बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग अ वैल्यू. अब इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली यहां पर दे दो, पहला ऑप्शन, या आप उसे कंस्ट्रक्टर में दे सकते हो. क्या बोला मैंने? कि आप उसे इंस्टेंस ब्लॉक में दे सकते हो. ये हो गया. स्टैटिक ब्लॉक को भी आप क्या कर सकते, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इसकी वैल्यू दे सकते हो, y इक्वल टू लेट्स से 100. दिस इज आल्सो देयर. सो ध्यान रखना, इंस्टेंस वेरिएबल्स must be initialized inline or in the constructor only once. उसे एक ही बार वैल्यू देना है आपको. एक तो इनलाइन उसी सेम लाइन में दे दो या कंस्ट्रक्टर में दे दो. व्हाट अबाउट स्टैटिक वेरिएबल्स? So instance variable must be initialized inline or in the instance block or constructor only once. Static variables must be initialized inline or in static block. समझे? क्या याद रखना है आपको? फाइनल वेरिएबल मतलब वो वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते. वंस वैल्यू इज असाइंड दैट्स इट. आप उसको फिर से चेंज नहीं कर सकते, एक बार वैल्यू देना है आपको. दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल. अगर क्लास फाइनल है तो वी कैन नॉट एक्सटेंड. अब मेथड को भी फाइनल कर सकते हैं हम. सो वी कैन मेक, इफ अ मेथड इज फाइनल, इफ अ इंस्टेंस मेथड इज फाइनल, then it cannot be overridden. If an instance method is final then it cannot be overridden. इसका मतलब क्या है? So overriding हम पढ़ने वाले अभी. So method overriding का मतलब क्या होता है? Defining a method in the subclass as of parent class method signature. तो हम पढ़ेंगे उसको. लेट्स से एग्जांपल है मेरा, सो मेथड ओवरराइडिंग हम फिर से पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के लिए. तो अभी के लिए बस जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. सो लेट्स से मेरे पास कोई क्लास है, पेरेंट क्लास, और उसके अंदर m1 मेथड है. ठीक है. नाउ दिस मेथड इज इंस्टेंस मेथड, पेरेंट क्लास की इंस्टेंस मेथड.
Now writing the same method in the child class as of parent class method is called as method overriding. ये क्या हो गया? This is overriding. क्या है overriding? सेम मेथड आप चाइल्ड क्लास में भी लिखते हो एज ऑफ पेरेंट क्लास. ये हो गया आपका ओवरराइडिंग. नाउ द मोमेंट आई मेक दिस एज फाइनल, ये नहीं कर सकते आप. इफ अ मेथड इज फाइनल देन यू कैनॉट ओवरराइड. ओवरराइड करना मतलब सेम मेथड आप चाइल्ड क्लास में नहीं लिख सकते. दैट इज अ सिंपल मीनिंग. तो अगर आपको कोई फाइनल कीवर्ड के बारे में पूछे, सो देयर आर 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. फाइनल क्लास से मतलब आप उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते. अगर वेरिएबल फाइनल है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. अगर मेथड फाइनल है, इंस्टेंस मेथड, देन आप ओवरराइड नहीं कर सकते. व्हाट इज ओवरराइडिंग? राइटिंग सेम मेथड एज ऑफ पेरेंट क्लास इन द चाइल्ड क्लास. सेम मतलब सेम नेम, सेम सिग्नेचर. सेम सिग्नेचर, सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर. सिग्नेचर आपको पता होगा, व्हेन आई से इसके अंदर जो भी है इसे हम सिग्नेचर बोलते हैं. समझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनली कीवर्ड? आर एबल टू मेक सेंस? इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं आपको अभी दे रहा हूं उसके नोट. देन Java provides one class which is a super class for all of the classes in Java, directly or indirectly. इसकी मेथड्स हम बढ़ने वाले लेटर ऑन. उसे हम कॉस्मिक क्लास भी बोलते हैं. पेरेंट. अब इस क्लास का मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाऊं अभी, पेरेंट पेरेंट इक्वल टू न्यू पेरेंट. नाउ p डॉट, इफ यू लुक एट दिस, p डॉट, are you able to get some methods access? Get class equals hash code to string, notify all to string. If you look at this, where is this method coming from? Or hash code. इसके अंदर तो कुछ है नहीं. इस क्लास के अंदर कुछ है क्या? But even though there is nothing, but I'm able to call this method hash code to string, because even though you do not write, by default there is one class already there in the top. उसका नाम है what is object now. इसकी मेथड्स हम बाद में पढ़ने वाले, बट अभी के लिए क्या है, वी आर लर्निंग इन द इनहेरिटेंस. सो देयर इज वन क्लास इन जावा जिसका नाम है, अरे सुपर नहीं, ये क्या है नाम? ऑब्जेक्ट. क्या नाम है उसका? ऑब्जेक्ट. क्या खासियत है उसके बारे में? हाँ ऑलरेडी ठीक है, प्रेजेंट है, लेकिन वो अल्टीमेट पेरेंट क्लास है. वो अल्टीमेट पेरेंट क्लास. आप ये एक्सटेंस लिखो नहीं लिखो, डजंट मैटर, स्टिल what is the parent class for this particular class? Parent object class. क्या नाम है? ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज, सो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द पेरेंट क्लास, अल्टीमेट पेरेंट क्लास. सो देयर इज अ ऑब्जेक्ट क्लास. ठीक है. सो क्या है इसकी खासियत? सॉरी, so it is a predefined class which contains 11 methods. हम ये बाद में पढ़ने वाले 11 methods. अभी के लिए ऑब्जेक्ट क्लास एक प्रीडिफाइंड क्लास है, उसके अंदर 11 मेथड्स है. इट इज ए सुपर क्लास
for every other class, for every class in Java. It is a super class for every class in Java, directly or indirectly. Directly or indirectly. क्या बोल रहा हूं मैं? हर एक जावा का क्लास, उसका पेरेंट क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास. कोई भी क्लास आप पहले डिफाइन किया हो, आगे फ्यूचर में डिफाइन करने वाले हो, सारे क्लासेस का सुपर क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास. राइट. सो वी डोंट नीड टू explicitly extend it. It is already done. It is already done. Look at this. इवन दो आप ये एक्सटेंड्स नहीं लिख रहे हो, वो लिखने की भी जरूरत नहीं, इट इज ऑटोमेटिकली एडेड. तो इसका पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास. नॉट ओनली दिस क्लास, कोई भी जावा में क्लास होगी, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास. ठीक है. सो लेट्स सी दिस. ओके. So what does Java inheritance means? Very simple. Process of building new class, utilizing the features of existing class, reusing the code. What are superclass and subclass? Superclass are classes from which features are inherited by subclass. मतलब जिसका कोड reuse होने वाला है, that class is superclass. Subclass मतलब जो reuse कर रहे हो. So what does Java implement? How does Java implement or achieve inheritance? By using extends or implements keyword. Write a syntax for class subclass creation. This is how we create a subclass, by using extends. Can a class extends on its own? Cyclic inheritance is not there. Are the instance initialization block and function inherited by subclass? No. Both the instance block are executed as part of that object creation. In Java, static members pass down to the subclass? No. तो जब आप इनहेरिटेंस की जब डेफिनेशन देख रहे थे, दैट इज समथिंग नॉन स्टैटिक नॉन फाइनल मेंबर्स. क्या बोला मैंने? नॉन स्टैटिक जब आप रीयूज की बात कर रहे हो. सो नॉन स्टैटिक, so which members we are going to non static, non final, non private. Check. So static members are passed down to the subclass? No. Static member belong to class, not to an object. हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट. हम static member belong to the class, not to an object. That remember. Can we override a final method? No, we cannot override. How are constructors called in this case of inheritance?
हायरार्किकल ऑर्डर में, टॉप डाउन. So why do Java programmers use inheritance? To avoid code duplication. What benefit does inheritance offer? बहुत सारी है. कॉमन कोड आप एक जगह लिख सकते हो, उसे यूज कर सकते हो सब क्लासेस में. अलग अलग टाइप की इनहेरिटेंस है. Why is inheritance necessary? अगर इनहेरिटेंस नहीं यूज करोगे तो what happens? You will write the same code again and again. हाँ, इसमें ये चलेगा, देखो एक बार. This code will run, compile. चलेगा. तो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है. सो आई टोल्ड यू दैट अगर मेंबर दोनों में भी सेम है तो ये ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? चाइल्ड क्लास का. तो यहां पर प्रिंट क्या होगा? C2x 40. इन दिस केस पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है 50. यहां पर ये तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है. चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास रेफरेंस. तो मेंबर किसका एक्सेस होगा? चाइल्ड का होगा ना. दोनों में भी एक्स एक्स दोनों जगह सेम है, तो किसका होगा? अब इस केस में पेरेंट का ऑब्जेक्ट है तो पेरेंट का एक्सेस होगा 50. इस केस में केस नंबर 3, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास रेफरेंस. Member is present in both parent and child. Variable is present in both parent and child. Variable from parent class and method from child class. तो यहां पर 50. तो आंसर आपका 40, 50, 50. So why isn't Java class based multiple inheritance support available? Java का ये support क्यों नहीं है? Multiple inheritance, why it is not supported through classes? Diamond problem, perfect. So what is diamond problem? What is diamond problem? अरे वही तो diamond problem क्या है? You said correctly. कौन? Child class is going to get confused. Which member to access? Super keyword क्या है जावा में? Super keyword is a reference. It is a reference to the parent class object. It is a reference to the parent class object. जैसे this आपका current class object है, वैसे parent refers to the super refers to the parent class object. Using that you can access super class की variables, super class के methods and constructor. So a reference variable used to refer to the immediate parent class. You already covered this, but a reference variable used to refer an immediate parent object.
So when you create an instance of a subclass, an implicit instance of parent class object is also produced and referred by the super reference variable. मतलब जैसे आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन जाता है यहाँ पर. So there are, so what it used, three purpose. The term super refers to an instant parent class variable. Instance parent class variable. The instant parent class considered is called using super function, and immediate parent class function is called using super. तो ये हमने ऑलरेडी देखा है. So what is method overloading? हमने देखा है method overloading little bit. So define multiple methods in the same class with same name but different signature. Method overriding, writing the same name in same method in the child class as a parent class method. So we'll be looking polymorphism. That time I will again explain. Okay. Is it possible to block method overriding without finally modifier? ये भी हम पढ़ेंगे. Abstraction का कुछ questions है. Access specifiers. What are the access specifiers? Okay. Fine. I think we are good. Aggregation versus inheritance. We already talked about that. Think we are good. What is method overriding? What are constructors in the context of inheritance? What is super keyword? Access specifiers? Think we are good. Perfect. Let me ask you one on one. As a group questions नहीं हो रहा है. Let's start with Ayan. Which keyword is used for inheritance? Extends and okay. Who represents is a type of relationship. Inheritance. Perfect. Java single inheritance, single level को inheritance को support करता है क्या? Perfect. Are static members are inherited to child class? Are inherited to subclass or child class? Static variables or static members, static methods? Yes, no? Static members inherit होता है क्या child class में? Parent class का? Instance member, object specific, one object to another object. Static members belong to the class, not to an object. तो वो static members नहीं आएंगे. Static members नहीं आएंगे. What about constructor? Whether it is inherited to child class? Constructor कैसे inherit होगा? Constructor मतलब there is different thing. मतलब जैसे आप child class का object create करते हो, internally parent class का भी object ही बन जाता है. मतलब वो वाला field भी आप access करते हो. तो constructor is for object creation. That is not inherited. Inherit क्या होता है आपका? Instance variables, instance methods. Using super keyword, can we access parent class का private variables? So you are in the child class and you want to access super class का private members. Can you access? नहीं कर सकते. We are in two different classes. The private है तो we cannot access. Can we use super keyword to access static methods of super class? Super class. कर सकते हैं? नो. क्यों? स्टैटिक सुपर कीवर्ड किसके लिए है? पेरेंट क्लास के मेंबर्स. कौन से? नॉन स्टैटिक.
नॉन स्टैटिक मेंबर्स, सुपर मेंबर्स आर इनहेरिटेड टू चाइल्ड क्लास, नो, तो उनको एक्सेस क्यों कर पाओगे? तो दिस कीवर्ड का यूज करके आप क्या क्या एक्सेस करते थे? इंस्टेंस वेरिएबल्स, इंस्टेंस मेथड्स। तो सिमिलरली सुपर का यूज करके सुपर क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल, सुपर क्लास का इंस्टेंस मेथड, नॉट दी स्टैटिक थिंग। तो स्टैटिक को कैसे एक्सेस करते हैं हम? यूजिंग द क्लास नेम। if parent class का consider private है, what will happen? Can we inherit the class? क्वेश्चन समझा? पेरेंट क्लास का कंसिडर प्राइवेट है, नहीं कर सकते, राइट? व्हाई देयर विल बी अ प्रॉब्लम? हाँ, प्राइवेट कंसिडर फ्रॉम द चाइल्ड क्लास देयर विल बी अ कॉल, किसको? सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसा है? प्राइवेट, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। ऑन द सिमिलर लाइन, अक्षय, पेरेंट क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज। पेरेंट क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज, जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो मेरा प्रोग्राम रन होगा या कंपाइल होगा? होगा? नहीं होगा। ये प्रोसेस चलेगा? क्यों? लेकिन क्यों? लेकिन कॉल क्यों करना है उसको? ऑटोमेटिकली तो कॉल होता होगा ना? हम्म? चलेगा प्रोग्राम? नहीं सर। नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा वैभव? बाय डिफॉल्ट फक्त डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होईल पॅरामीटराइज नाही. तो यहाँ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा किसका? चाइल्ड क्लास का। और उसके कंस्ट्रक्टर से एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कौन सा? जीरो पैरामीटराइज। तो जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्या तुम्हारे पास? तो ये नहीं चलेगा। तो कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ पर। यू हैव टू राइट अ कंस्ट्रक्टर इन चाइल्ड क्लास, देन फ्रॉम देयर यू हैव टू राइट दैट। बट अभी ये तो नहीं चलेगा। दो चाइल्ड क्लास एक पेरेंट से इनहेरिट हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकतं. हो सकते हैं ना? ठीक है, इतना क्यों सोच रहे फिर? अयान, which is the top class or who is the super class in Java? ऑब्जेक्ट क्लास। उसका कोई सुपर है? उसका कोई सुपर क्लास है क्या ऑब्जेक्ट क्लास का? देर इज नो फर्दर पेरेंट, इसलिए उसे कॉस्मिक क्लास भी बोला जाता है, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट पेरेंट, उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है। तो उसको ऐसे भी पूछ सकते, व्हाट इज द रूट ऑफ जावा इनहेरिटेंस? व्हाट इज द रूट? ऑब्जेक्ट क्लास। देर इज वन मोर क्वेश्चन। रिकॉर्ड हमने देखा था, राइट? सो व्हाट इज रिकॉर्ड? इम्यूटेबल क्लास। नाउ कैन यू टेल मी, इफ आई हैव टू क्रिएट एन इम्यूटेबल क्लास, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इम्यूटेबल क्लास मुझे क्रिएट करना है सिंपली। इम्यूटेबल मतलब ऑब्जेक्ट
मॉडिफाई नहीं कर सकते. कैन यू हेल्प मी डिजाइन सच क्लास? How to create an immutable class? Immutable class means once object is created, we cannot modify that. So how to do that? Getters. मेंबर्स ला फायनल करावं लागेल. ये मेंबर पुराना इसलिए बता दिया तुमने, हाँ? अरे नाही सर, मी पण करतोच. भूल गए थे क्या तुम भी? हाँ चलो दीक्षा, क्या करोगे? लेट्स से अभी मेरे पास ये कोई क्लास है, लेट्स से इम्यूटेबल, इसको नाम देता हूँ मैं इम्यूटेबल. ठीक है. अब इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स में लिख दिया, इंट ए, इंट बी, और इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने. ठीक. ऑब्जेक्ट बन गया. नाउ कैन आई चेंज दिस वैल्यूज? a equal to 100, b equal to 200. I can do that. Am I able to change the content of this particular class object? Yes. तो आपने बोला कि इसको प्राइवेट कर दो, ठीक है, प्राइवेट बन गया. अब आप डायरेक्टली वेरिएबल्स एक्सेस नहीं कर सकते outside the class, outside the class, right? But I'm in the same class now. I can access that. I can access that within the same class. I can access that. Then, so if I mark this as final, we cannot do this now. समझे इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? समझे? So once object is created, we cannot modify that. तो क्या क्या करना है? First, जो भी क्लास है उसको फाइनल कर दो, क्योंकि चाइल्ड क्लास उसको एक्सटेंड ना कर पाए. So first thing, make the class as final. Make the class as final. Then make all fields as private and final. अब उनको इनिशियलाइज कैसे करोगे? इनिशियलाइज द फील्ड्स. फर्स्ट टाइम तो वैल्यू देना है ना. इनिशियलाइज फील्ड्स थ्रू कंस्ट्रक्टर. क्या किया सबसे पहले? क्लास को फाइनल कर दिया, मेंबर्स को प्राइवेट फाइनल कर दिया. इनिशियलाइज कैसे करना है? कंस्ट्रक्टर. अब आपने सेटर भी दिया. सेटर देने से कुछ होगा क्या अभी? लेकिन फिर भी हम बोलेंगे डू नॉट प्रोवाइड सेटर मेथड्स. वैसे भी कुछ काम होगा नहीं, क्योंकि क्या है, फाइनल है. वैसे भी कैसा हो, फाइनल. डू नॉट प्रोवाइड सेटर मेथड्स, ओनली प्रोवाइड getter methods. Now, what is copy constructor?
Sir, हाँ बोलो बोलो. we provide class type data and its reference as a parameter. So we create an object using existing object. ठीक. Perfect. Now if you know that, based on that, now let's say मैंने getter दे दिया कोई methods, मैंने कोई वैल्यू उसको रिटर्न कर दिया, राइट. अगर उसने, अब आपको एकदम 100% इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाना है, 100%. नाउ लेट मी गिव यू अ सिंपल थिंग. ठीक है. फाइनल डेट एस डेट, ठीक है. और मैंने यहां पर दे दिया गेटर पब्लिक डेट get joining date and return joining date. Now can you tell me what is the problem with this? डेट चेंज नहीं हो सकती. चलो इसको समझे तो आपका आज की क्लास खत्म कर सकते हैं. अब मुझे बताओ, मेरा एक रेफरेंस है, ठीक है. वो रेफरेंस किससे पॉइंट कर रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है. और इसमें कुछ वेरिएबल्स है, a इक्वल टू लेट्स से 10, b इक्वल टू 20. अब मेरा रेफरेंस फाइनल है, मेरा रेफरेंस फाइनल है. इसका मतलब फाइनल स्टूडेंट रेफरेंस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. समझो इसको. सो व्हाट इज फाइनल? इसका मतलब ये रेफरेंस हमेशा को किसको पॉइंट करेगा? इसे ही, राइट. क्या बोला मैंने? रेफरेंस इज पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट ऑलवेज. ये कभी चेंज नहीं होगा. बट देर इज वन प्रॉब्लम विद दिस. कैन आई डू दिस रेफरेंस डॉट ए इक्वल टू 100, रेफरेंस डॉट बी इक्वल टू 200? कर सकता हूं अभी? हाँ. क्लास स्टूडेंट अब कर सकता हूं मैं? कर सकता हूं, राइट. नाउ द मोमेंट आई मेक दिस एज फाइनल, अब नहीं कर सकते. आपको यहां पर इसको वैल्यू देना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही. इसको वैल्यू देना पड़ेगा 10 20. आपका ऑब्जेक्ट बन गया. अब आप चेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू दिस. ये फाइनल है इसलिए क्योंकि आपने यहां पर कंस्ट्रक्टर दिया a कॉमा b और दिस डॉट a इक्वल टू a, दिस डॉट b इक्वल टू b. अभी आप चेंज नहीं कर सकते.
तो ध्यान रखना कि जब मैं रेफरेंस फाइनल किया, इट डजेंट मीन मेरा ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा, ये भी फाइनल करना पड़ेगा। समझे? हाँ, अब मुझे बताओ इसमें क्या दिक्कत है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वैभव, कैन यू सी दिस? मैंने किसी को मेरा ज्वाइनिंग, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ही है ना, ये ऑब्जेक्ट मैंने उसको रिटर्न कर दिया ज्वाइनिंग डेट। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो मैं उसको रेफरेंस दे रहा हूं ना, ऑब्जेक्ट तो बन गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहां पर। अब यहां पर एक और चीज मैंने इसको भी फाइनल कर दिया, यहां पर क्या दिया मैंने, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग is an object equal to some object. Now this is pointing to y, ये तो फाइनल है, ये तो फाइनल है, ये हमेशा y को ही पॉइंट करेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि नॉर्मल वैल्यू हो, इसके अंदर भी ये रेफरेंस हो सकता है। सो ऑब्जेक्ट के अंदर ए बी और ये एक रेफरेंस दैट इज पॉइंटिंग टू अनदर ऑब्जेक्ट, इसके अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, लेट्स से डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, लेट्स से 1/1/26, इसके अंदर वो वैल्यू है। अब मैंने रिटर्न क्या किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो रेफर कहां कर रहा है, ये वाले ऑब्जेक्ट को। अब ये फाइनल है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका फाइनल है, फाइनल है ना? ठीक है, अब गड़बड़ क्या हो रही है यहां पर, ये गड़बड़ होगा ना, इस पर्टिकुलर चीज को, ये फाइनल नहीं है ना, तो ये फाइनल तुम्हारे हाथ में है नहीं ऑब्जेक्ट हो, ये डेट क्लास किसने ऑलरेडी डिफाइन करके रखी है, तुम इस पर्टिकुलर क्लास को टच नहीं कर सकते अभी। लेकिन तुम एक चीज कर सकते हो, इसका रेफरेंस क्यों दे रहे हो तुम, तुम्हारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तुम दे रहे हो, तो इसको क्या करना चाहिए, दिस इज बैड, दिस इज बैड प्रैक्टिस। तो आपने क्या करना चाहिए, रिटर्न न्यू डेट, तो नया ऑब्जेक्ट दे दो उसको बना के, तुम्हारा ओरिजिनल मत दो। सो दिस इज बेस्ट, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफेंसिव कॉपी। समझे? तो यहां पर एक और नया चीज आपको ऐड करना है, व्हाट यू हैव टू डू, रिटर्न डिफेंसिव कॉपी फ्रॉम गेटर्स। दिस इज बेस्ट, ये आपको करना है। क्यों करना है? परफेक्ट, बस रेफरेंस फाइनल था लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, वो ऑब्जेक्ट तो, वो क्लास को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, डेट क्लास तो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उसको कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट बना के दे दिया। तुम अभी ठीक है, तुम्हारे इसको क्या करना है वो करो, तुम्हारी मर्जी, हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इंटैक्ट रहेगा। So this is how we create a really nice immutable object. क्लियर है? इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, हाउ डू वी क्रिएट एन इम्यूटेबल क्लास, व्हाट आर द वेज टू डू दैट, कहाँ ब्रेक हो सकता है, ये भी आपको बताना है। हाँ, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इसमें आपको पूछेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड भी आपको वैसे कुछ मिलता है। जब रिकॉर्ड वो अलग बता, वो उसके उसके मत, उसको मत खींचना, अगर वो पूछता है रिकॉर्ड क्या है तो बोलना कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, तो फिर वो लेटेस्ट वर्जन है, उससे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इम्यूटेबल क्लासेस, हाउ डू वी डिजाइन इम्यूटेबल क्लास, क्या क्या चीजें आपको नोट करना है। क्लियर? सो आज हमने पढ़ा इनहेरिटेंस,
4 केसेस, फाइनल कीवर्ड, ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में थोड़ा सा, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस, इम्यूटेबल क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा इंटरव्यू मटेरियल है गाइस, प्लीज फोकस ऑन दिस। ठीक।